I hope I'm audible to everyone. Akshay? Yes. Okay. So one Sunday it so happened that the Sunday school got cancelled and all the children were sitting with their parents in the church. एक इतवार को ऐसा हुआ कि जो संडे स्कूल था वो नहीं लगा और सारे बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप के साथ वो चर्च में बैठे हुए थे. And the pastor was preaching, and as he was preaching, he thumped the pulpit and says, do you know who Jesus is? और बोलते बोलते पादरी साहब ने पुलपिट पे ऐसे हाथ मारा और सवाल किया कि आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? And then he began to continue his message, and this little boy was listening. He got a little scared also because of that, that thump. ये छोटा बच्चा सुन रहा था, थोड़ा सा डर भी गया उस आवाज से. Then again the message went on, and again in between the pastor asked, do you know who is Jesus? और फिर उस पादरी साहब ने एकदम से ऐसे पुलपिट पे जोर से हाथ मारा और कहा कि आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? So this boy turned to his mother and said, Mom, do you know who is Jesus? तो इस छोटे बच्चे ने अपनी माँ से धीरे से कहा कि मम्मी क्या आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? तो मम्मी ने the mom said, yes I know, but you be quiet and don't interrupt during the message. तो माता ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन चुपचाप बैठो और शोर मत करो मैसेज के बीच में. And then the pastor continued, and as the message was ending, one last time he said, do you know who is Jesus? और जैसे वो संदेश खत्म हो रहा था, अंत में उसने एक बार और हाथ मारा और उसने कहा क्या आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? And the boy jumped up and said, Mama, tell him who is Jesus. और कूद के बच्चे ने कहा अपनी माँ से कि माँ बता दो इनको यीशु मसीह कौन है? That was a nice question. Do you know who is Jesus? We are looking at the third letter to the seven churches. हम तीसरे पत्री को देख रहे हैं जो कलीसियाओं को लिखा गया. To the church in Pergamum. परगमम की कलीसिया को यीशु मसीह ने ये पत्री लिखी. And Jesus wrote a letter because Jesus knew this congregation. यीशु मसीह इन लोगों को जानते थे और क्योंकि वो जानते थे इसलिए वो ये चिट्ठी इस कलीसिया के लोगों को लिख रहे थे और इस कलीसिया के लोग भी यीशु मसीह को जानते थे. We are looking at Revelation chapter 2, 12 to 17. हम लोग प्रकाशित वाक्य 2 और 12 से 17 पे आज हम ध्यान करेंगे. This church at Pergamum is a perfect example of how on the outside something can look very shining and very hopeful, very good, impressive. But when you look in the inside, then there's deception, there's ungodliness. तो इस कलीसिया में जो हो रहा था, जो इनके आसपास हो रहा था, वो एक उदाहरण हमारे सामने ये है देखने के लिए कि बाहर से कोई चीज जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी आशावान चीज है, लेकिन जब उसके अंदर देखते हैं तो वहां पे ऐसा मिलता है कि बहुत सी बातों में परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे थे और बहुत सी बातों में वहां पे धोखा दिखाई दे रहा था. And when the sin gets severe, then the Lord's action and judgment is also severe. और जब लोगों का इस प्रकार से परमेश्वर के प्रति पाप करना जब और बढ़ जाता है, संगीन हो जाता है, तो फिर परमेश्वर जो न्याय करते हैं वो न्याय भी थोड़ा संगीन हो जाता है. So what's the story of the church at Pergamum? परगम के चर्च में कि क्या कहानी है, यहाँ पर क्या हो रहा था. So it was situated on a hill. It was beautiful and impressive. एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था. The height was approximately 1,000 feet above sea level. Not very high, but high enough to be seen from afar. एक पहाड़ी पे बना हुआ था, करीबन 1,000 फीट की ऊंचाई पे
बहुत सुंदर था, एंड इट वाज अ सेंटर फॉर ग्रीक एजुकेशन एंड कल्चर। और यूनानी संस्कृति, यूनानी शिक्षा का वो केंद्र था। They had a library with over 2000 volumes of books. उनके पास एक पुस्तकालय था। 2 लाख से 2 लाख से ऊपर उनके पास किताबें थी। It was also a center for cult worship. और यहाँ पे दूसरे देवी देवताओं की आराधना भी बहुत होती थी। Now, interestingly, I discovered, I had this question in my mind, but I discovered this answer while I was preparing for this. Have you noticed the sign at the back of ambulances, the sign for medical, for medicine, no, for hospitals? It's a serpent on an iron rod. आपने एम्बुलेंस के बीच पे या जहां जहां मेडिकल है वहां देखा होगा कि एक लोहे की छड़ी पे एक सांप लटका रहता है। आप अगली बार देखिएगा एम्बुलेंस के बीच पे। So it's a serpent on a scepter. It comes from Pergamum. परगमम की कलीसिया, परगमम के जो शहर है, उस शहर से ये आता है। So there was this Greek god Asclepius. Asclepius नाम का यूनानी देवता वो लोग मानते थे, गॉड ऑफ हीलिंग, गॉड ऑफ मेडिसिन। और वो लोग मानते थे कि वो चंगाई देने वाला देवता है और इलाज करने वाला देवता है। एंड पीपल केम फ्रॉम फार टू गेट हील्ड। और लोग दूर दराज देशों से आते थे वहां पे अपना इलाज कराने के लिए। एंड नो वंडर व्हाई द स्कॉलर्स कॉल इट अ सैटानिक कल्ट। और उसकी वजह से वहां पर उनका ये चिन्ह था, उनका ये चिन्ह था, और सांप उनका चिन्ह था। सर्पेंट वाज द साइन। एंड the scholars say that Satan himself was the chief attraction of the city. शैतान खुद यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण था इस शहर का। And no wonder why Jesus said in verse 13, I know where you live, where Satan has his throne. Where Satan has his throne. ये हिंदी में पढ़ दीजिए। मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू वहां, जी आगे पढ़ दीजिए। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिम तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। 2 times Jesus says you are living at a place where Satan also lives. तुम उस स्थान पर रहते हो जहां पर शैतान का भी वास है, जहां पर शैतान का गढ़ है। The first time Jesus says where Satan has his throne, उसका गढ़ है ये। So this, ये जो शहर था शैतान का गढ़ था, शैतानी बातों का ये गढ़ था। So all the satanic activities or cultic activities, this was the center. And this is the place where this church was, in the midst of these people. And Jesus is addressing to this church situated where the throne of Satan is also present. और यीशु मसीह ऐसे लोगों से संबोधित कर रहे हैं जो शैतानी इलाके में रहते थे। सारी शैतान की बातें, गलत बातें वहां पे होती थी। और ऐसी जगह पे ये कलीसिया थी और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को ये चिट्ठी लिख रहे हैं। Now, what was the complaint? I'll first come to the complaint, then I will come to the commendation. आज मैं पहले बात करूंगा जो शिकायत यीशु मसीह ने इस कलीसिया से करी, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह ने इनके बारे में क्या सराहा। First the complaint. What was the complaint of Jesus for this church? What did Jesus not find right in this church? ये जो कलीसिया थी, यीशु मसीह की इनसे क्या शिकायत थी और ऐसी कौन सी बात थी जो यीशु मसीह को इस कलीसिया में, इस चर्च में पसंद नहीं आ रही थी। Let's read.
let's read verse 14. Nevertheless, I have a few things against you. You have people there who hold on to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. हिंदी में पढ़ दीजिए. पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें. वैसे ही तेरे वहां कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं. There were people who were leading the church astray, following the teachings of Balaam. उस कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो कलीसिया को गलत रास्ते पे लेके जा रहे थे, गलत शिक्षाओं के मार्ग पे लेके जा रहे थे. और ये शिक्षाएं पुराने नियम में जो बलाम जिसको हम देखते हैं उसके सिखाई हुई बातों पे आधारित लोग जो थे वो कलीसिया के लोगों को भरमा रहे थे और गलत रास्ते पर लेके जा रहे थे. Now what did this Balaam do? If you want to see later on in Numbers 22, 23, 24, you can read. गिनतियों में 22, 23, 24 में आप देख सकते हैं that King Balak feared that a large number of Israelites were traveling through his country. जो राजा बालक था उसको ये बड़ा डर था कि ये इतने ढेर सारे लाखों इजरायली लोग जो हैं वो मेरे देश में से होकर के गुजर रहे हैं. So he hired Balaam to pronounce a curse on them. उसने बेलम को नियुक्त किया कि वो इन सारे इजरायलियों को श्रापित कर दे. Later, Balaam influenced the Israelites to turn to idol worship. और बाद में ऐसा हुआ कि जो बलाम था उसने इजरायलियों पर कुछ ऐसा असर डाला कि जो जो बातें परमेश्वर ने मना करी थी उन सारी बातों में, मूर्ति पूजा करने में, ये सब जो मना किया था परमेश्वर ने, ये सब बातों में वो लोग आ गए. And the same thing of the past was now seen in the present church. और जो जो चीजें इतने वर्षों पहले, सदियों पहले लोग करते थे जो परमेश्वर ने मना करी थी, वही बातें, कुछ बातें आज फिर कलीसिया में देखने को मिल रही थी. And this was the complaint of Jesus. और यीशु मसीह ने ये शिकायत इस कलीसिया से करी कि जो मेरी शिक्षा है उसको छोड़ करके तुम उस शिक्षा के पीछे जा रहे हो जो मना किया है. That you have left my teachings and some of you are following the teachings of these pagan gods whom I told not to follow. And this is the complaint of Jesus. Now, that's a constant struggle for the church even today. आज जो कलीसिया है ये संघर्ष आज भी कलीसिया के सामने मौजूद है. Even today, Christians fall prey to the traps set by the devil and his followers. आज भी जो चर्च है, कई बार जो है चर्च के लोग जो हैं वो जाल में फंस जाते हैं. शैतान और उसके चुने हुए लोग जो जाल बनाते हैं उन जाल में फंस जाते हैं. You may wonder how is that possible? और आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि चर्च के लोग जो हैं वो शैतान के बनाए हुए जाल में फंस सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? How is it possible? You know, and we can think of our own church that in GBC we follow the Bible, we pray regularly, we preach, we teach strictly based on the Bible. हम अपने चर्च के लिए हो सकता है ऐसा सोचें कि यहाँ पर अपने चर्च में तो हम वचन पर आधारित सब कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिखाते हैं और वचन पर आधारित सब कुछ करते हैं. This can never happen to Grace Bible Church. और हम कह सकते हैं, शायद सोचते हो कि ये हमारे चर्च में तो कभी नहीं हो सकता. Amen. May it never happen in Grace Bible Church. और प्रार्थना है कि ऐसा कभी हमारे चर्च में ना होने पाए. But let us not be overconfident of our spirituality. हम अपनी आत्मिकता को लेकर के अति आत्मविश्वास से ना भर जाएं. Now the devil works very subtly. जो शैतान है वो बहुत धीरे से और छुप के
और छल से वो काम करता है. Now the Nicolaitans, they were believers who compromised with their faith in order to enjoy some sinful practices in the Ephesian society. निकोलेटेंस का जिक्र पहले भी आ चुका है और फिर से आ रहा है, और पुराने नियम में इनका बहुत जिक्र है कि ये वो विश्वासी लोग थे जिन्होंने अपने विश्वास के साथ समझौता कर लिया था. समझौता कर लिया था कि अगर हम लोग थोड़ा सा जो समाज में चीजें हो रही हैं, जो समाज के तौर तरीके हैं, अगर थोड़ा सा हमने मजा कर लिया तो क्या हुआ, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई. डज इट मैटर सो मच इफ वी ऑल्सो एंजॉय लिटिल बिट लाइक द वर्ल्ड, डू लिटिल बिट लाइक देम. नो, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. इससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए. थिंक अबाउट दिस. इसके बारे में सोचिए. When we want to do something which is wrong, we find some excuse to justify our behavior. अगर हम कुछ गलत करना चाहते हैं, गलत रास्ते पे जाना चाहते हैं, प्रभु की बात को छोड़ के गलत शिक्षा पे जाना चाहते हैं, तो हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं अपनी बात को सही ठहराने का. We find some way out to justify what we want to do, saying it isn't as bad as it seems. अरे जितना बुरा लोग सोचते हैं, जितना बुरा दिखता है, उतना बुरा ये है नहीं, और it won't hurt your faith. ये आपके विश्वास को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा. People have made a big issue out of it. It's okay, it's fine. लोगों ने इसको बहुत बड़ी बात बना दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और आप कर सकते हैं. Christ has strong words who look for excuses to sin, and we will see that in this chapter, in this passage. यीशु मसीह के पास बहुत कड़े शब्द हैं उन लोगों के लिए जो बहाने ढूंढ लेते हैं अपने किसी गलत विचार को करने के लिए या गलत कार्य को करने के लिए. Christ has very strong words for them. Words like, now what to do, everyone does it. अब क्या करें, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं. I have often heard girls parents say, मैंने कई बार सुना है कि लड़कियों के माँ बाप ये कहते हैं, since there are no good Christian boys, now the only option is to look for boys from other communities. I've heard it a lot. आपने भी सुना होगा कि भाई अब मसीह समाज में अच्छे लड़के तो है नहीं, नॉर्थ में तो है नहीं, तो अब क्या करें. तो अब एक ही रास्ता है कि दूसरे समुदायों में ढूंढते हैं. their other boys are well educated, they are well settled, they are good in nature, family is very good, see, very good standing, and the boy really loves me. ये बहाने हम बनाते हैं कि क्या करें, अच्छा लड़का जो है क्या है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, घर में कोई समस्या नहीं है, और स्वभाव का बड़ा अच्छा है, परिवार बड़ा अच्छा है, बड़ा मान सम्मान है, लड़का मुझसे प्यार भी करता है. दैट इज एन एक्सक्यूज. ये बहाना है. मैरिज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द होल लाइफ. आई नो इट इज बिटर ट्रुथ बट इट्स ट्रू. विवाह जो है वो जीवन का हिस्सा है, विवाह पूरा जीवन नहीं है. मैरिज कैन नॉट एंड शुड नॉट बी द ओनली पर्पस ऑफ योर लाइफ. विवाह जो है वो आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए. यू विल नॉट डाई इन केस यू डोंट गेट मैरिड. यदि आपको विवाह ना हो पाए तो आप मर नहीं जाएंगे. Nevertheless, trust God and engage in biblical ways of finding a godly life partner. जो परमेश्वर ने रास्ते बनाए हैं उन तरीकों पे चल के अपने लिए प्रार्थना पूर्वक एक परमेश्वर से भय खाने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले जीवन साथी का चुनाव करिए. Because that is a big excuse that we are seeing today. बहुत बड़ा, हर जगह, any church, any place, it's a very big excuse, and it is not acceptable to Jesus. The truth is this. Verse 16.
The Lord says, repent, therefore. Otherwise, I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. हिंदी में पढ़ दीजिए. अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा. Also, let me read to you now verse 12, which says, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. ये भी पढ़ दीजिए. जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है. Now, sword is a scary weapon. एक तलवार जो है उसको देख के डर लगता है. जब कभी कभी टीवी में अखबारों में लोग तलवार लिए घूम रहे हैं, ये अच्छा माहौल अच्छा नहीं दिखता है, भय लगता है. नाउ हियर स्वॉर्ड इज ओनली अ सिंबल. यहां पर जो तलवार का जिक्र हुआ है वो केवल और केवल एक चिन्ह है. इट्स ओनली अ सिंबल, बट इट्स अ वेरी पावरफुल सिंबल. लेकिन ये जो चिन्ह है एक बहुत शक्तिशाली चिन्ह है. व्हाट डज दिस सिंबल मीन? इस चिन्ह का मतलब क्या है? इफ इट सेज ओवर हियर दैट these are the words of him who has sharp double-edged sword, ये उसके शब्द हैं जिसके पास दो धारी तलवार है. And if it says I will soon come and fight against them with the sword of my mouth, मैं अपने मुख की तलवार से. So what is the meaning over here? इसका मतलब यहाँ इस तलवार का क्या मतलब है? What is the meaning of this sword over here? God has ultimate authority and the right to judge. परमेश्वर के पास अंतिम अधिकार है और न्याय भी वो करेगा. Nothing can survive the hard blow of the sword of God. जब प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपनी तलवार से वार किया है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता. Nothing can survive the hard blow of the sword of God. The Lord will separate and claim what is his and will cause eternal punishment for the ungodly. जो प्रभु के हैं, जो प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, जो प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, परमेश्वर उनको अपने लिए अलग कर लेगा. और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए अनंत काल का दंड परमेश्वर अलग करेगा. When you study Revelation, you have to be ready to hear this. I'm sorry. जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो प्रभु की कठोर वाणी को सुनने के लिए दिल को मजबूत कर लें. I cannot make this any more suitable for you and me. और इस बात को मैं और हल्का करके सुनने लायक नहीं बना सकता. This is what the Lord says. ये यीशु मसीह ने कहा है और इसको हमें कठोर शब्द हैं लेकिन यीशु मसीह के शब्द हैं इसलिए हमें इसको ध्यान से सुनना है. Hard teaching, hard words, but it is from the Lord Jesus and we need to hear it and think about it. Now let me bring to you a very important aspect of the church at this point. कलीसिया के बारे में एक बड़ी खास बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं. The principle that comes out from the situation of the Pergamum church, the principle, the learning lesson that comes out is this, that Christian life is not escape but conquest. Christian life is not escape but conquest. जो एक सिद्धांत इस कलीसिया की पत्री से निकल के आ रहा है वो ये है कि जो मसीह जीवन है वो किसी परिस्थिति से भागना नहीं है लेकिन विजय प्राप्त करना है. परिस्थितियों से भागना नहीं है लेकिन विजय प्राप्त करना है. We may feel that it is much easier to live a Christian life in some other part of the world or in some other circumstances. हो सकता है हमें ऐसा लगे कि दुनिया के किसी और देश में और जगह पे और परिस्थितियों में एक मसीह जीवन जीना जो ज्यादा आसान होगा. But that's not what the word of God says.
It's the duty of every Christian to witness Christ wherever he or she is placed, not to run away. वचन हमको यह सिखाता है कि जहां पर भी प्रभु ने हमें रखा है वहां पर हमको प्रभु की गवाही देनी है, प्रभु की सेवा करनी है, वहां से भागना नहीं है, जहां पर भी रखा है. And this is exactly why Jesus commends and praises the believers of this church. और इसी बात को लेकर के यीशु मसीह ने तारीफ करी है, प्रशंसा करी है इन लोगों की इस कलीसिया में. And let's see what the Lord praises them for. इसी बात को लेके क्या तारीफ करी है यीशु मसीह ने. In verse one second. Verse 13. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. Yet you remain true to my name. And further on, you did not renounce your faith in me. तुमने मेरे नाम के प्रति सच्चे बने रहे और तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा. In the midst of satanic activities, satanic teachings, in the midst of people who have surrendered to Satan's plans, you have not given up. This is what the Lord is saying. यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं कि ऐसा माहौल है जहां पे सब लोग मजे कर रहे हैं, सब लोग समाज के बताए हुए रास्तों पे निकल गए हैं, ठीक है, और जो सांसारिक बातों में लग गए हैं जो कि यीशु मसीह का बताया हुआ रास्ता नहीं है, और उसकी वजह से सताव भी हो रहा है. Because this church is not yielding to the ways of the world, they are under persecution. क्योंकि ये जो लोग हैं, इस कलीसिया के लोग जो हैं, वो संसार की बातों में नहीं जा रहे हैं, संसार के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए इनका सताव भी है. Because somebody had died. Let's find that out. Even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city. Antipas के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि जो बहुत अच्छा विश्वासी था, प्रभु का सेवक था, प्रभु का विटनेस था, गवाह था, उसको जान से मार दिया गया था. It means it was a hostile environment. So it is like either you are with us or not with us. या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं हैं. And so this is the church that decided to not be with the world. इस कलीसिया ने यह तय किया था कि हम संसार की बातों में संसार के साथ नहीं जाएंगे. And they were holding their ground. और वो डटे हुए थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे और हम विश्वास में बने रहेंगे. चाहे सताव आए, सताव को सहन करेंगे. We will face the hardships, but we will not give in to the ways of the world. You know, had the people of the early church given up, you and I probably would not be sitting here. जो शुरुआत की कलीसिया थी, अगर वो सब लोग भाग गए होते, छोड़ के चले गए होते, विश्वास में ना बन के रहे होते और सब दुनिया के सांसारिक बातों में लग गए होते, तो आज आप और हम यहाँ नहीं बैठे होते. It is because they persevered. It is because they didn't give up. The message spread and people got to know about Jesus, and that is how you and me also know about Jesus. और क्योंकि वो लोग डटे रहे, वो डरे नहीं, भले ही उन पे कितनी मुसीबत आई, इसीलिए वो शब्द, यीशु मसीह का शब्द लोगों तक पहुंचा और आप और मुझ तक भी पहुंचा. So let's ask question, am I faithful to the Lord even if others are lost and are misguiding me? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास से भरा हुआ हूं, भले ही बाकी लोग जो हैं वो खो गए हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं और मुझे भी गलत रास्ते पे जाने की सलाह दे रहे हैं. The people are telling me also it's okay, it's fine, just do it your way, it doesn't matter. But still, am I going to be faithful to the Lord or not? That question we have to ask. Do I keep myself separated
from ungodly teachings and practices around me. मेरे चारों तरफ अगर कोई भी गलत शिक्षाएं हैं मेरे विश्वास को लेकर के, जीवन को लेकर के, वचन को लेकर के, अगर हैं भी, और हैं, ऐसी बात नहीं है, you look around and you will see lots of false teachings. लेकिन क्या मैंने उन सब बातों से अपने को अलग रखा है? Have I made sure that I am separate, I am not mixing with those wrong teachings? वो जो गलत शिक्षाएं हैं, गलत शिक्षा को कराने वाले लोग हैं, क्या मैंने ऐसी बातों से अपने को अलग रखा है कि नहीं? और on the other hand, do I faithfully follow the words of Jesus? दूसरे हाथ पे क्या मैं पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं कि नहीं चलता हूं? Even if it makes me look like a loser, और ऐसा करते हुए लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, even if people laugh at me, ये एक ही बेवकूफ है इस दुनिया में और बाकी सब लोग चले गए, ये एक ही बेवकूफ यहां बैठे हुए हैं. People will laugh at us, no? People will say you are a fool, you are a loser. कहेंगे ये तो बेकार है, ये तो हारे हुए हैं. Even, and please hear me carefully, even if I lose big time on the material blessings, even if I lose big time on material blessings of this world, am I still going to be faithful to the word of God? And that is something we need to think. भले ही संसार की जो चीजें हैं, संसार की जो भौतिक चीजें हैं, अगर वो भौतिक चीजें मुझे ना भी मिले, भौतिक सुख ना भी मिले, लेकिन तब भी मैं यीशु मसीह के प्रति विश्वास से भरा रहूंगा, भरी रहूंगी, और मैं संसार के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाऊं. That is the biggest and ultimate question. बहुत बड़ा सवाल है. That even if I don't get the blessings of this world, still I will follow the Lord. Is there a reward for doing this? इतना बड़ा कदम उठाने का क्या कोई इनाम है, पुरस्कार है? Yes, there is. बहुत बड़ा पुरस्कार है. अगर इतना बड़ा कदम कोई उठाता है अपने विश्वास के लिए, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या कहा. What did the Lord say? He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Verse 17. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. हिंदी में पढ़ दीजिए. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा. Now, without going much into history, we know the history of manna. How God supplied manna to the people of Israel in the desert, in the wilderness for 40 years. हम जानते हैं कैसे इतिहास में प्रभु परमेश्वर ने खाना, मन्ना उनको दिया और उनकी पूरी यात्रा में इतने लाखों लोग थे, 40 साल तक दिया. Here we're talking about spiritual nourishment. That even when you do these things for the Lord, and it will drain you spiritually. It is not easy. It is easy to say. It's difficult to do, but not impossible. ये यहां से खड़े होकर कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन असंभव नहीं है. It is not impossible to follow what the Lord says. It's difficult but not impossible. And the Lord says, what's your reward? I will nourish you. I'll give you spiritual nourishment. Though you will be drained, आप आत्मिक रूप से खाली हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, मैं तुम्हें नरिशमेंट दूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से आत्मिक रूप से भर दूंगा. Spiritually you will not lack. Spiritually you will not lack. आत्मिक रूप से
आपके पास किसी बात की कमी नहीं होगी. Even if you miss out big time on the blessings of this world or the worldly blessings, spiritually, I will nourish you, I'll give you the spiritual manna. That's a very big blessing. No earthly agent can give you that blessing. संसार की कोई भी बात आपको वो आशीष प्रदान नहीं कर सकती जो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं. If you overcome, right? The condition is this. What is the condition? To him who overcomes. It is not for those who give in. If you have given in and if you are asking for spiritual nourishment, it may not happen. My wisdom says it may not happen. अगर आपने संसार की बातों में आप चले गए हैं और वही काम कर रहे हैं जो संसार के लोग कर रहे हैं और फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे आत्मिक रूप से उठा, शायद ना हो, क्योंकि यहां पे लिखा है टू हिम हु और हर हु ओवरकम्स. जो इस पड़ाव, इस कठिनाई पे विजय प्राप्त करेगा, उसके लिए ये रिवॉर्ड, ये पुरस्कार रखा हुआ है. So in the midst of ungodliness all around us, the Lord will be your helper and provider. जब आपने ऐसा कदम उठाया है कि हम सांसारिक बातों में नहीं जाएंगे, डटे रहेंगे, चाहे जो हो जाए, तब परमेश्वर आपका सहायक होगा, परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा. And secondly, the Lord says, I'll give you a new name on a white stone. A new name on a white stone. It simply means you have a new being in Jesus Christ. यीशु मसीह में एक सफेद पत्थर पर नया नाम का मतलब क्या हो सकता है? एक यीशु मसीह में एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत. व्हाइट स्टोन, प्योर, परमानेंट. पत्थर पे जो लिख देते हैं वो मिटता नहीं है. हिंदी में कहते हैं पत्थर की लकीर. पत्थर पे जो लिख देते हैं वो जल्दी मिटता नहीं है. So if the Lord writes our names on a white stone, pure, nobody can erase our names. My dear friends, in this world, people will come and go. इस संसार में लोग आएंगे चले जाएंगे. बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए. Money comes, money goes. पैसा आता है, चला जाता है. At one point of time, our country was rich. Today, you know what the situation is. I mean, the whole world is like that actually. You have a bank balance one day, next day you don't have. आज पैसा है, कल नहीं है. You have health one day, after some years you may not have. But the Lord is saying, I have written your name. I will write your name permanently on a white stone and you will know it. मैं तुम्हारा नाम हमेशा के लिए एक सफेद पत्थर पे लिख दूंगा. You know, no one can take that reward away from you. In other words, पत्थर पे अगर लिख दिया तो वो नाम और वो जो पुरस्कार परमेश्वर ने आपको दिया है वो अब आपसे कोई ले नहीं सकता. You know, it's a beautiful promise to end this letter. So here is a group of people who are troubled, and there is trouble from within and from without also. कलीसिया के अंदर भी समस्या है, कलीसिया के बाहर से भी समस्या है. बाहर से जो गैर मसीह लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं कलीसिया को. Those who are not Christians, not believers, they are persecuting the church. From within the church also there's false teachings. No, there's people who are not abiding by what the Lord has said. कलीसिया के अंदर से भी कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे नहीं जा रहे हैं और औरों को भी गुमराह करना चाह रहे हैं. The Lord is saying, commending that you hang on and you do keep on doing what is right. जो सही है वो तुम करते रहो, सही रास्ते पर चलते रहो, and I am going to make sure that you are spiritually nourished. कि मैं इस बात को देखूंगा कि तुम आत्मिक रूप से पूर्ण रहोगे, and that your reward is a spiritual reward and nobody can take it away. तुम्हारा जो इनाम है, जो पुरस्कार है, वो आत्मिक है और वो तुमसे कोई नहीं ले सकता.
We can think about our own lives as we think of the church at Pergamum. परगम की कलीसिया के बारे में जब पढ़ते हैं तो अपने जीवनों के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं कि कहीं ऐसी परिस्थिति में हम भी तो कहीं नहीं फंसे हुए या इससे मिलते जुलते समस्याओं में तो हम नहीं हैं. And if we are stuck in any of such problems or any of things that are similar, then we can do what this church did and we can follow the instructions of what Jesus gives to this church, because it is an instruction to the church universal. जो सलाह, जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया के साथ किया है वो सारी कलीसियाओं के साथ किया है. Let's pray. Our Father, we thank you for such a clear promise that you've given to this church and your clear words that help us to decide which way we should be going and which way we should be avoiding. प्रभु जी, आपने इतने स्पष्ट शब्दों में हमको बताया है कि किस रास्ते पे हमें जाना चाहिए, किस रास्ते पे हमको नहीं जाना है, क्या करना चाहिए. Lord, we pray that as we follow your footsteps and face difficulties, जब हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, Lord, you will give us that spiritual manna and help us to know that you are nourishing us, that we'll all experience your nourishment. प्रभु जी, जब उस कठिन रास्ते पर चलते हैं जो संसार के तरह नहीं है, आपका बताया हुआ रास्ता है, तो प्रभु जी हमें आत्मिक रूप से तृप्त कर दीजिए. Lord, help us to live by that hope of our names being written in the book of life. प्रभु जी, हम उस आशा के साथ जिए कि यहाँ कुछ भी होता रहे, लेकिन उस जीवन की पुस्तक में आपने हमारे नाम को अंकित कर दिया है हमेशा के लिए. Lord, help us to desire to be what you want us to be. प्रभु जी, हमारे दिलों में ये इच्छा आ जाए हमेशा कि जो आप चाहते हैं वही हमेशा हम करने पाए. We ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. We are going to